मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा लास्ट में, जैसे अगर फिजिक्स में बोल दिया जाए कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लो, फिर आप बुक्स कर लो, ठीक है, उसके बाद आप अपने जो भी 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर ले आदमी, वो उसके लिए सफिशियंट है। और जो आपकी बायो और केमिस्ट्री के लिए अपनी स्टेट बुक्स और एनसीईआरटी अगर आदमी कर ले तो क्या वो सफिशियंट है ना? मैं करेक्ट हूँ या नहीं, ये चीजें आप लोग प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। कोई कंफर्म करे? एनीवन? अंकित, राजेंद्र, सुब्रजीत वांट टू गोल से? में बायो के लिए आप स्टेट बोर्ड के पढ़ सकते हो, स्टेट बोर्ड से ही ज्यादा आते, एक दो क्वेश्चन तो आप कहाँ से आते हैं वो सभी को टफ लगेगा, एक दो क्वेश्चन। लेकिन केमिस्ट्री का मैं बोलूंगा आप अगर थोड़ा सा अपर लेवल के पढ़े या एनसीईआरटी देखे तो अच्छा ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। प्रीवियस ईयर तो वो तो मस्ट होता ही है। फिजिक्स के लिए अगर एररलेस प्रैक्टिस की जो बुक होती है वो ऑलमोस्ट पूरी करनी चाहिए, जब जितनी हो पाए एररलेस की फिजिक्स जितनी हो पाए, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं। एक बार मैं ओवरऑल शशि कुमार से कहना चाहूँ कि एक बार आप ओवरऑल बता देना कि स्टेज 1 के लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए। शशि, एक बार सब कुछ मिला के तुम बता दो अपने तरीके से। Sir, if I have to tell that someone how to prepare for NTSC stage 1, then I'll say that first thing to do is that at least 2 or 3 last year papers must be done, sir. First, even if they are covered the syllabus or whatever, first open the last 3-year papers, check out what type of questions they are giving, in what way they are asking, so that we'll get to know how to read for that questions. Because sir, you have said that right, sir. In social, they'll be asking like not directly what that year or what this person is. They'll not asking in such a way. They'll ask in an entirely different way. So that we should read, sir, to answer social questions, we should read like what the basic story is happening there. Yeah. So it depends on the paper. So first they must go through the papers and then they'll understand everything, like what to read and everything. Sir, I also, sir, if someone is from state board, sir, they have to do this thing that they should check the SAT paper, whether the questions are coming from their state board books or from NCERT books. Yeah. It must be done, sir. I have done this, sir. I found that most of these questions are from NCERT for me, so I've went through the NCERT book. एक एक करके क्वेश्चन। And sir, पहला क्वेश्चन must be- मैथ के लिए अब तुम बता दो, मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी है? व्हाट्स द स्ट्रेटजी फॉर मैथ? हाँ sir. Sir, for math, sir, only one concept, sir, that practice, completely practice. But a little strategy is that when you go through the last year paper, sir, we must find that, sir, here in Telangana, they'll repeat certain patterns, sir, the type of questions. Like first bit is they'll be giving some series, and like first 50 questions, sir, they'll give verbal reasoning, and next 50 non-verbal. So certain pattern is maintained. So if they give that certain pattern for every year, then they must follow that pattern, and they should solve that type of questions mostly. Now come to the sad part. First thing for maths, what you Yes. want to say? Sir, maths, sir, if I have to tell about my state, sir, maths is not from our state board, not even from NCERT, sir. The questions level were typically difficult, sir. They are much difficult than the 10th level, sir. I can understand. So I think that no, this is a certain book to read or this is the certain things to do in maths, but go through the concept and clear the basic questions. Even the paper is hard, they'll give definitely some 4 or 5 questions which are easy. So at least try for 4 or 5 questions. Now, since we come to the science portion, physics, chemistry, and biology. Sir, physics part will be easy for us. Here it will be very easy. So need not worry, just basic concepts and basic formulas. Chemistry part, sir, for us, the state board and NCERT is same. Nothing much different. Both are same. So no problem about that. Even if the student did not listen to any classes. Sir, myself, if I have to say, half of the syllabus, sir,
in our state online classes were late, so I covered the syllabus myself. Even before giving the NTSC examination, certain topics were not covered, like organic chemistry and certain topics, sir, they were not taught for us, but I read myself. So we can do so chemistry part. And biology, sir, even if we do not read anything from textbook, some questions like related to agriculture, if they have practical experience, they can do, sir, certain questions in biology, some 2 or 3. And from I books, sir, it will be less for biology. I hope everyone is okay with the Sasi Kumar answer. Everyone agree with this answer? सबको यही लगता है? एक बार सब लोग बता देंगे इस बात को. Yes, sir. Everyone agree? Yeah. Okay. Now one question कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, सब लोगों ने फॉर्म स्कूल से भरा था? Yes, sir. सभी Yes, बच्चों sir. ने? नहीं सर, खुद से। हाँ, कौन खुद से भरा था वो थोड़ा सा बता दे। सर मैंने। अच्छा, सुब्रजीत, अब खुद से कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या तरीका होता है, उसके लिए स्कूल से क्या करवाना पड़ता है, एक बार थोड़ा बता सकते हो? सर मैंने तो वेबसाइट पे हमारे बोर्ड के ही, मतलब स्टेट बोर्ड के ही एक वेबसाइट एनटीएससी के लिए है, तो वहां पर मैंने हमेशा नजर रखा था। तो नोटिस जब आया तो मैंने कंप्यूटर सेंटर में जाकर फिलअप किया था, या आप घर पे भी कर सकते हो। तो वहां पर जो फॉर्म देते हैं तो उसमें बस एक ही आपको जस्ट आपके स्कूल के हेडमास्टर से आपको साइन करवाना पड़ेगा। ये बस स्कूल से रिलेटेड है, वरना आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके ओके। तो और कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अपने से फॉर्म भरा था? सार्थक, यू आर? आई होप सभी बच्चे स्कूल से ही फॉर्म भरे थे। अमन, तुमने भी खुद से भरा था क्या? यस सर। तो यही तरीका था, खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर स्कूल से जाकर ऑनलाइन। हाँ, और हाँ, मैंने फिर एक हेडमास्टर का साइन चाहिए था, तो उसके लिए हमने अपने हेडमास्टर को भेजा था, तो वो फिर पीडीएफ में ही भेजा, उधर से उन्होंने साइन करके दे दिया था हमें। अच्छा, डिजिटली साइन करके उसके बाद फिर से अपलोड कर देना होता है? यस सर। तो मतलब अगर किसी स्कूल वाले अगर एनटीएससी नहीं फॉर्म फिल करवा पाते हैं, तो वो अगर ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है तो वो खुद से भर के वहां से साइन करवा के सबमिट करा सकते हैं? ये सर, मेनली उसमें एक हेडमास्टर का साइन चाहिए होता है। तो वैसे हमारा वेस्ट बंगाल में स्कूल था और मैं बिहार में था, तो वैसे भी जा नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन भेज दिया था और फिर उन्होंने साइन करके दे दिया था। बढ़िया। तो आई होप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया एनटीएससी स्टेज 1 में। यस शशि सर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि जो लोग है स्कूल से ही करना है एप्लीकेशन। I mean, like they can apply individually, but they need some school code and all Okay, to I know. log in the website. हाँ, ये आई नो। वो प्रिंसिपल को भी पोर्टल पे जाके खुद से लॉगिन करना पड़ता है, तब उनके पास आती है चीजें, तो उसके बाद हो पाती हैं। चलो, ये तो सारी चीजें फॉर्म भरने की बात हो गई। और आप सभी लोगों ने स्टेज 1 क्वालिफाई किया। मैट में लगभग सभी बच्चों ने 80-90 नंबर स्कोर किए हैं, लगभग देख पा रहा हूँ जितने भी बच्चे मेरे पास अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मैट के लिए सबकी वही स्ट्रेटजी रही, कुछ बच्चों को स्कूल में बताया जाता था, कुछ बच्चे खुद घर पे बैठ के कर रहे थे, कुछ बच्चे आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे, और लगभग सभी बच्चों ने 80-85 नंबर स्कोर किया है। सेट में कुछ बच्चों के ठीक आए हैं और कुछ बच्चों के उतने अच्छे नहीं आए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। तो आप सभी लोग पहले बताइए कि स्टेज 2 के अलावा आप कौन कौन सी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई या नीट या किस चीज की? शशि, किस चीज की प्रिपरेशन अब आप कर रहे हो? सर, मैं अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। मनीष, आप? सर मैं स्टेज 2 एपीवाई नीट। ओके। अंकित, राजेंद्र, धर्मेंद्र? Yes, sir. राजेंद्र, Stage 2 and स्टेज 2 एंड Stage 2 preparation and 11th. मतलब बोर्ड्स केवल कर रहे हो, अभी जेई या नीट किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो? ओके। धर्मेंद्र, आप? No, sir. No. सर, मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। अमन, आप? सर जेई। ओके। सार्थक? सर मैंने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, लेकिन सर शुरू करूंगा कुछ दिन में। ओके।
चलो तो आई होप अब सभी लोगों को 11th-12th की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो भी आपको जेई या नीट करना है। साथ ही साथ स्टेज 2 के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि आपको मे बी 5-6 महीने या 4 महीने मिले, क्योंकि पिछले साल देखो फेब में हुआ था, तो इस साल कब होता है पता नहीं, लेकिन उसके बारे में जो भी नोटिस आती है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। और थोड़ा थोड़ा तुम लोग क्या करना कि 11th-12th तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, उसके लिए 11th के लिए परेशान होना ही नहीं है, मतलब 9th-10th के साइंस के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, ना ही मैथ्स के लिए परेशान होना है। सोशल स्टडीज के लिए तुम एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना, उसके लिए अब तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना है। स्टेज 2 क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है तो वो एनसीईआरटी ही आती है, तो सोशल स्टडीज अगर 1 आध घंटा तुम्हें टाइम मिल जाए तो वही बुक रीडिंग करना, उसमें मार्क किए ही होगे, तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते रहना। और हाँ, इस बार डेट्स वगैरह नहीं आने वाली है कि डायरेक्टली तुम्हें पूछा गया कि इनका शासन कब तक चला, ये सारी चीजें इस बार तुम्हें उस पर फैक्ट आएगा, उस टॉपिक के बारे में आएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल के, कुछ इस प्रकार से, किसी किसी को 2-3 ऑप्शन सही होंगे, तो बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा होगा। उसके लिए जिसकी बुक रीडिंग अच्छी होगी, जो डीपली पढ़ा होगा सोशल स्टडीज को, उसका अच्छा होगा। मैथ में भी थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, जो आपको एकदम इजी इजी सीरीज के क्वेश्चन मिल रहे थे वो थोड़ा सा टफ होंगे, थोड़ा फिगर वाले क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा होगा। और हाँ, इस बार का पेपर लेंदी बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो स्टेज 2 के लिए आप आराम से एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहना। पूरे 8,000 बच्चों में से 2,000 बच्चों को मौका मिलता है स्टेज 2 को मतलब क्वालिफाई करने के लिए, लगभग 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वही ख्याल रखना। और साइंस के लिए कुणाल सर क्या कहना चाहेंगे स्टेज 2 के लिए? साइंस के लिए बस ये मैं बोलता जाऊंगा कि भाई आप लोग 11th पे भी थोड़ा फोकस करते जाओ, 11th और 12th वाली चीजों पे, कि जो भी बेसिक से अब काम नहीं चलने वाला, अब बेसिक्स में भी तुम्हें कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेज 1 के लिए तो जो तुमने करा वो बात अलग, अब आप लोगों को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे आपके एग्जाम के लिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा करके उन्हीं को प्रैक्टिस करो और फॉर्मेट समझने की कोशिश करो। पढ़े तो देखो, पढ़ तो ऑलरेडी आप लोग लिए हो, क्या क्या चीजें पढ़नी थी आपको, अब जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आप परफेक्ट बनते जाते हो। बाकी अगर कोई मुझसे हेल्प हो पाएगी, आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग ग्रुप में अवेलेबल हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर बहुत सारे ऐसे ही बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वही बच्चे हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे। अब मैं अपने बच्चों जो बाद में वीडियो देखेंगे इस वीडियो को, उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो ये बच्चे वो हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लोगों को तो मैं प्रिपरेशन करा भी रहा हूँ, तो आप अच्छा ही करोगे, ठीक है। तो जब खुद से बच्चे कर पा रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस करके, अगर आप प्रैक्टिस किसी के माध्यम से कर रहे हो, किसी के थ्रू कर रहे हो, तो आप और अच्छा करोगे। तो एक बात और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि बच्चों को डर लगता है कि कितना टाइम देना चाहिए क्योंकि उनका बोर्ड खराब हो सकता है, इसके बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगे? टाइम मैनेजमेंट के बारे में कितना टाइम देना चाहिए? एनीवन? यस राजेंद्र। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जब जैसे हॉलीडे, जैसे कभी हॉलीडे होता है ना, तो वहां से आप टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 3 आवर्स आप सेट कर सकते हैं टाइम, किसी भी डे के, मतलब डे में आप कोई भी टाइम, या तो नाइट या डे। इतना टाइम निकालते रहिए और डेली बेसिस पर निकालिए ताकि आपको थोड़ा बहुत एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिले। शशि, व्हाट यू वांट टू से कि टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? मनीष, यू वांट टू से समथिंग? सर जो जो बच्चे स्टेट बोर्ड के होते हैं सर, उनका बोर्ड एग्जाम्स इतना डिफिकल्ट नहीं होते सर। it's like when if the board exams are in some particular date, sir, within 1 or 2 months they can prepare for board exams, sir. That is not a big issue. So while preparing for boards, if they are in initial part, like in if suppose let's say it's October or November, in that time give preference for NTSC and Yes. board exams जो है उसके क्या करना है सर, बोर्ड एग्जाम्स जो लेक्चर्स तो जरूर देंगे ना सर स्कूल में, और यहाँ का लेक्चर्स तो जरूर देंगे, उसको समझना है सर। just listen to them, clear the concept there for boards, and don't go for much deep preparation for boards. Just do one thing, that prepare for NTSC, and then at the last time after, I think sir mostly अगर कोई February में एग्जाम है तो after February full fledged we can go for boards, sir. So don't much concentrate on boards in initial days. First NTSC, and after NTSC go for boards. Manish, you want to add something? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। सर हमारे एरिया में जितने भी स्कूल हैं, नवंबर तक
या दिसंबर तक फुल एनटीएससी। बोर्ड्स को एकदम साइड में, इंग्लिश हिंदी की कोई क्लास नहीं। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट होते हैं 10-15 दिन में, बोर्ड्स का हो जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं इनकी बात नहीं। अपनी एनटीएससी को पक्का करो तो। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे फालतू में डरते हैं। देखो बोर्ड्स के लिए उनको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। जब आपका दिसंबर में पेपर हो चुका होगा तो 2-3 महीने पूरे बोर्ड्स के मिलेंगे। और जब आप अपने आप को एनटीएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इतने बड़े एग्जाम के लिए, तो आप बोर्ड्स के लिए तो डर ही नहीं सकते हो। और 10th का बोर्ड तो बहुत ईजी होता है, उतना टफ नहीं होता है, जबकि 12th का बोर्ड थोड़ा टफ होता है। और किसी को और कुछ पूछना है? Anyone have सर any question? स्टेज सुप्रजीत, तुम्हारी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम स्टेज 2 के लिए क्या बुक्स फॉलो करें? स्टेज 2 के लिए देखो, एनसीईआरटी के पास ही। हाँ, सोशल स्टडीज के लिए एनसीईआरटी से हटना नहीं है तुम्हें। और अगर तुम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होगे तो अब तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो अब जेई लेवल के भी लगाना थोड़ा बहुत। क्यों सर? जेई लेवल का न्यूमेरिकल तो अब लगाना ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी आप जेई स्टेज लेवल 2 के में। न्यूमेरिकल। अब जैसे देखो बेसिक्स, अब आपके सारे चैप्टर्स तो है नहीं, जो जेई के सारे चैप्टर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं आपके एनटीएससी में। तो जो जो चैप्टर्स हैं आप 11th-12th के लिए एचसी वर्मा खरीद लो, ठीक है। उनके सिर्फ एग्जाम्पल्स को ट्राई कर लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। बस उतना अगर कर लेते हो, उसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको थ्योरी गिवन है, सारी बातें, बस एग्जाम्पल्स कर लो, उसका मेथड देख लो, अप्रोच आपका चेंज हो जाएगा। 11th देखो, 10th से जब हम 11th में जाते हैं तो हमारा सोचने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच जो होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे काफी चीजें काफी वास्ट हो जाती हैं। आपकी जो फिजिक्स थोड़ा सा आपने पढ़ा था काफी वास्ट हो जाती है। सो दैट्स वाई आप वहां पे जब एग्जांपल्स लगाओगे तो आपके सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, तो आप उनके एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। अच्छा, मैथ्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स जो होता है वो टोटली जो 11th का सिलेबस होता है वो 9th प्लस 10th का मिक्सअप होता है। जो क्वाड्रेटिक तुम 10th में पढ़ रहे थे, जो एपी तुम पढ़ रहे थे, जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब वो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट 11th में मिलने वाला है और बहुत बढ़िया लेवल का मिलने वाला है। और वही लेवल तुम्हें स्टेज 2 में पूछा जाएगा। तो मेक श्योर 11th की मैथमेटिक्स जो 10th से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके करने ही करने होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और तुम्हारा ट्रिगो हो गया। ट्रिगो तुम्हें 11th लेवल में बहुत बढ़िया ट्रिगो पढ़ाया जाता है, तो वहां पे जाके करोगे तो इट मींस तुम्हारी स्टेज 2 की प्रिपरेशन चल रही है। तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम इतना बढ़िया हो गया कि तुम 11th भी पढ़ रहे हो इस साल, जनवरी लास्ट में जाके हो सकता है दिसंबर में तुम्हारे स्टेज 2 कराया जाए, तो तुम्हें स्टेज 2 को क्लियर करने के लिए और ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है। मैथ के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, थोड़े अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुमने तो प्रैक्टिस कर ही ली होगी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस। पिछले साल तो तुमने पढ़ा ही है मैथ सब कुछ, सिलेबस तो तुम्हारा डन ही है। बस अच्छे प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करो, और उसके अलावा तो बाकी चीजें मैथ, साइंस, सोशल हो ही गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? तो मैं सर जूनियर्स को कहना चाहूंगा, या सार्थक, अगर तो टैट की प्रिपरेशन कर रहा है सर कोई जूनियर, तो पहले वो सर सोशल स्टडीज और साइंस को देखे। क्योंकि सर कोई सोचेगा कि अगर मैं मैथ पहले कर लूंगा, सर मैथ से बस आता है 20 क्वेश्चंस, यस, क्वेश्चन बहुत ऊपर लेवल का होता है। पहले सोचिएगा कोई मैं मैथ कर लूंगा तो सर उसका सोशल साइंस और साइंस छूटेगा। बिल्कुल, इसलिए पहले साइंस और सोशल साइंस, तब मैथ। बिल्कुल। ये बात सार्थक की बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको फोकस जो है वो सोशल साइंस और साइंस पे करना चाहिए, क्योंकि दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं और ये 80 मार्क्स आपके कंसिस्ट करते हैं। अगर आप एक बार पढ़े रहोगे तो 80 में से 60 निकाल सकते हो यहाँ से, जबकि मैथ आपका हार्ड लेवल का आता है, हाई लेवल का आता है। पूरा पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना लगे वहां पर, ना बने वहां पर। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी आपकी सोशल स्टडीज और साइंस होनी चाहिए, और मैथ वाला सेक्शन तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहां से आपको 80 to 90 नंबर स्कोर करना है। इज इट ओके? एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग? यस राजेंद्र। सर मैंने जहां तक देखा है सोशल स्टडीज एंड साइंस में जो ब्रैकेट्स होते हैं ना बुक्स में, एनसीईआरटी मैक्सिमम वहीं से आता है सर, मैक्सिमम नंबर वहीं से आता है मैक्सिमम। ओके ओके, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स एंड इन टेक्स्ट जो वो ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें लिखी रहती है नोट करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग?
मनीष कह रहा है कि सर आप कुछ सीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं मैट का। बिल्कुल, अगर मेरे पास जो भी चीजें अवेलेबल होंगी मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा मनीष, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? आई होप नो वन वांट टू ऐड एनीथिंग। और तो शुरुआत की रिकॉर्डिंग जो नहीं हो पाई, बट बाद में हम लोगों ने कवर किया कि हमें मैट में क्या करना है। मैट में हमें टोटली अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, एकदम नॉर्मली पढ़ना है। अच्छा, पेपर का लेवल तो नॉर्मल ही होता है, बहुत हाई लेवल का तो होता नहीं है स्टेज 1। नो सर, बेसिक ही होता है, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज। बहुत Sir, बढ़िया। that depends on the state, sir. ओके, Because for Telangana it was easy, and I have solved certain papers of Punjab, sir, which were difficult. And Delhi, sir, they will not maintain any sequence, sir. That they'll follow just like stage 2. They have asked the previous year 46 question from basic math, that is arithmetic reasoning. I don't know, sir, but Yeah. but in math paper, Delhi, sir, they won't make any pattern. They'll just like mixed up questions, sir. Yeah. There will be no certain order. It will make like it will waste our time, sir, if they are not in order. So it depends on state what the level of the paper of math. चलो, तो बहुत ही अच्छा लगा यार तुम लोगों से बात करके। और ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमेशा रहेगा। तुम लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी कोई भी अपने जेई की प्रिपरेशन में, नेट की प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। और बहुत अच्छा लगा कि ये आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इससे आपके जूनियर्स को बहुत हेल्प होगी, वो इस प्रिपरेशन में उनको काफी हेल्प होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए स्ट्रीम पर। तो चलिए तब, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय सर। बाय। बाय सर।